and forcing you to open your mind to different approaches, to different sort of language of questions, different setups that can come. But this is the exact kind of question that is coming in JEE Advanced. It's not difficult, it's different, and that is where the student gets stuck, and they automatically get a mental block. Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back with season 7, episode number 5 from the prediction series. Prediction series में I bring to you questions, very unique sort of questions which you will probably not find in your general coaching material, but इस तरीके के questions आ रहे हैं in the recent JEE Advanced years. So आज के episode का जो question है वो मैंने originally नहीं बनाया है. I have made it after reading an awesome paper जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड ये ऐसा क्वेश्चन है विच इज़ वेरी मच JEE एडवांस लेवल इन द सेंस दैट बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट बहुत डिफरेंट है. ऑलराइट, सो इसी तरीके के क्वेश्चन JEE एडवांस में आते रहते हैं विच आर अ लिटिल डिफरेंट, बट देन दैट इज द एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आई वांट टू गिव यू एक्सपोजर टू इन दिस सीरीज. सो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन. एंड एक बार तुम पॉज करके ट्राई कर सकते हो. आई पुट दिस क्वेश्चन ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल. सो इफ यू हैव ऑलरेडी ट्राइड इट यू कैन गो अहेड एंड लुक एट माई सॉल्यूशन. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई हैव अ ब्लॉक विच इज ऑन अ स्मूथ सर्फेस and it's connected by two identical elastic strings. Alright, and they follow Hooke's law, मतलब the force is proportional to its extension. And इस right वाले string को pull कर रहे हैं with a force equal to alpha t, where alpha is some positive constant. तो पूछा गया है for what values of alpha will the left string break first? दोनों में maximum tension that the strings can sustain is T naught. So T naught is the maximum tension before they break. तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि we have to find the values of alpha for which the left string breaks first. Breaks first मतलब it reaches the value of T naught before the right string. Alright. So सबसे पहले तो let me figure out the equation for the block. मतलब वो कैसा डिस्प्लेस होगा, वहीं से मुझे इसमें टेंशन निकलेगा. इस राइट वाले स्ट्रिंग में टेंशन तो अल्फा टी के बराबर है, बट लेफ्ट वाले स्ट्रिंग में टेंशन के लिए आई नीड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक. Correct. So if the block is displaced by some value x, तो I can write my force equation, ये alpha t लगेगा, यहाँ पे kx लगेगा. So I'll write alpha t minus kx should be equal to ma. Correct. So a का वैल्यू आ जाएगा alpha by mt minus k by mx. Alright. तो इसको मैं बस ct minus omega square x लिख लेता हूँ. where c I've just replaced the variables by another variable. c is alpha by m, constant which is alpha by m, and omega squared is k by m. Alright. Now ये equation को कैसे solve किया जाए? So this is something that you should know. This equation को solve करने के लिए you have to try and eliminate time, and the best way to do that is to differentiate this equation. So if I differentiate this equation, I'll get dA by dt should be c minus omega square x का derivative velocity. अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये कांस्टेंट टर्म भी हट जाएगा एंड पूरा प्योर एसएचएम इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा. सो मेरे पास देखो क्या बन जाएगा, d2a by dt स्क्वायर्ड, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन. कैन यू सी दैट दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन एक्सेलरेशन. द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग एसएचएम, इट इज एक्सेलरेशन दैट इज परफॉर्मिंग, और इट इज अ मैथमेटिकली परफॉर्मिंग एसएचएम. सो आई कैन राइट माय एक्सेलरेशन is some a naught sin omega t. वैसे यहाँ पे कांस्टेंट भी आ सकता है, ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसे आ सकता है, बट t इक्वल टू 0 पे ये नेचुरल लेंथ है दोनों, तो इसका एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पे 0 ही है. ऑलराइट, सो आई कैन जस्ट राइट दिस. यहाँ पे कोई प्लस फाइव करके मुझे डालने की जरूरत नहीं, बिकॉज द एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज सिंपली 0 at t इक्वल टू 0. ऑलराइट, नाउ a naught is a constant which I need to find out. Okay, so you should understand that this equation, ये जो equation हमें निकला, that is the equation of SHM. SHM मतलब any function that obeys this equation कि double derivative is proportional to the function itself with a negative sign. It has to be a sinusoidal function. Alright, उसका solution. So acceleration इस फॉर्म में है, a naught का वैल्यू निकालना है. So ऐसे क्वेश्चन में जब a naught का वैल्यू निकालना है
द की इज टू लुक एट द फर्स्ट डेरिवेटिव. इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं, सो डी ए बाई डी टी कितना बन जाएगा मेरे पास, ओमेगा ए नॉट कॉस ओमेगा टी. करेक्ट. नाउ टी इक्वल टू 0 पे दिस वैल्यू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ए नॉट, राइट. एंड यहां से डी ए बाई डी टी का वैल्यू ओमेगा ए नॉट, यहां से टी इक्वल टू 0 पे कितना था, दिस इक्वेशन देखो, डी ए बाई डी टी का हमारे पास एक्सप्रेशन है. तो टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 था, ब्लॉक वाज एट रेस्ट. सो टी इक्वल टू 0 पे डी ए बाई डी टी का वैल्यू was c मतलब अल्फा बाय m. करेक्ट. सो दिस शुड बी इक्वल टू अल्फा बाय. सो ए नॉट का वैल्यू बन जाएगा अल्फा बाय m ओमेगा. ऑलराइट. सो मेरे पास पूरा एक्सेलरेशन आ गया. सो एक्सेलरेशन इज अल्फा बाय m ओमेगा साइन ओमेगा टी. नाउ ये जो एक्सेलरेशन मिला वो मैंने क्यों कैलकुलेट किया, सो दैट आई कैन गेट अल्टीमेटली x. आई नीड x so that I can get the string tension here which is kx. okay. तो ये जो टेक्निक है डी ए बाई डी टी को मैंने t इक्वल 0 पे इक्वेट किया. काइंड ऑफ यू शुड रिमेंबर दिस बिकॉज ये आगे जाके भी अलग चैप्टर्स, आगे वाले चैप्टर्स में भी ये टेक्निक यूज होता है. सो व्हेन यू हैव an SHM equation and you want to calculate, or you have the function here and you want to calculate the amplitude, it is often useful to look at the derivative of that and then substitute t equal to 0. जैसे यहाँ पर क्या आगे जाके भी EMI चैप्टर में जहाँ पे तुम्हारे पास एक कैपेसिटर, इंडक्टर, सेल होगा तो वहाँ पे भी ये टेक्निक यूज होता है. So it doesn't matter that you will study in that chapter, but I would like you to kind of remember this approach. Okay. Okay, so acceleration is alpha by m omega sin omega t, and यहाँ से velocity कैसे निकालूँ मैं, I'll just integrate. So sin omega t का integral is cos omega t with a divided by omega with a negative sign, and limits लगाया मैंने 0 से t. velocity 0 पे तो velocity t equal to 0 पे तो 0 ही है, and this is the velocity at time t. Okay, so देखो ये क्या बन जाएगा, alpha by m omega squared 1 minus cos omega t. ये मेरा velocity बन गया. Now इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा टू गेट द डिस्प्लेसमेंट और द पोजिशन, द वैल्यू ऑफ x. सो इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा, अच्छा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, k बाय m, तो इसको मैं m ओमेगा स्क्वायर को k लिख सकता हूँ. ठीक है. ऑलराइट. एंड द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग या द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक वुड बी अल्फा बाय k इनटू वन का इंटीग्रल t cos ओमेगा t का इंटीग्रल sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा, एंड लिमिट 0 से t लगा होता है यही आएगा बिकॉज t इक्वल टू 0 पे तो ये पूरा 0 है. ठीक है. ओके, सो आई हैव x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. नाउ व्हाट डू आई नीड, आई नीड दैट इफ द लेफ्ट स्ट्रिंग मस्ट ब्रेक फर्स्ट, दिस kx value should reach t naught before alpha t reaches t naught. Correct. Okay. It will be easier to calculate the condition for which the right string breaks first. क्यों? क्योंकि right string break first करने के लिए time का वैल्यू डायरेक्टली मेरे पास पता चल गया. So what I'm going to do is I'm going to find the value of alpha for which the right string breaks first, and the other values of alpha will simply be the condition for which left string breaks first. So this is kind of a clever way to simplify our calculations, because alpha t, if I say if right string breaks first, so I can directly say कि the time when it breaks would be t naught by alpha, because alpha t would be equal to t naught. Alpha t is the tension in the right string. ठीक है. तो इस टाइम पे, at this time, if the right string breaks first, at this time the kx must be lesser than t naught if the right string breaks first. This string must be lesser than t naught. एक चीज है, you should understand that the tensions in both the strings will always be increasing. ऐसा oscillation कुछ नहीं होगा. ठीक है. तो ये हम बोल सकते हैं from the value of kx. Can you see x is always increasing because velocity is always positive. Positive or zero. It's never negative. Right? Block का velocity is never negative because 1 is always greater than or equal to cos omega t. So हमेशा इसमें टेंशन बढ़ते ही जाएगा. Alright, so it will reach the value of t naught only once. So
If the right string breaks first, then we have kx lesser than t naught at this time. मतलब kx का वैल्यू क्या है, ये चीज. So अल्फा इंटू t का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, t नॉट बाय अल्फा माइनस साइन ऑफ ओमेगा t नॉट बाय अल्फा डिवाइड बाय ओमेगा. ठीक है, शुड बी लेसर देन t नॉट. क्या लिखा मैंने, kx लेसर देन t नॉट. kx को मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा इंटू टी माइनस साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा, एंड t का वैल्यू मैंने t नॉट बाय अल्फा सब्स्टिट्यूट किया. सो एट दिस इंस्टेंट इफ kx is lesser than t नॉट, देन राइट स्ट्रिंग विल ब्रेक फर्स्ट. मुझे क्वेश्चन में लेफ्ट स्ट्रिंग ब्रेक्स फर्स्ट चाहिए, बट राइट स्ट्रिंग ब्रेक फर्स्ट का कंडीशन बहुत इजीली लिख दिया मैंने, उसको अभी इन्वर्ट कर दूंगा. देखो पहले जस्ट क्विकली फिगर आउट करते हैं राइट स्ट्रिंग ब्रेक्स फर्स्ट के लिए क्या कंडीशन. दैट अल्फा अल्फा ये तो कट जाएगा, तो मेरे पास देखो क्या बचेगा कि टी नॉट माइनस अल्फा बाय ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी नॉट बाय अल्फा मस्ट बी लेसर देन टी नॉट, राइट. सो फॉर राइट स्ट्रिंग टू ब्रेक फर्स्ट दिस इज द कंडीशन. टी नॉट तो कट गया, करेक्ट. सो इसका मतलब फॉर राइट स्ट्रिंग टू ब्रेक फर्स्ट दिस टर्म मस्ट बी पॉजिटिव. इसका मतलब ओमेगा टी नॉट, या यहीं पे बोल देता हूं, दिस इज द कंडीशन फॉर राइट स्ट्रिंग टू ब्रेक फर्स्ट, एंड देन यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा. तो लेफ्ट स्ट्रिंग ब्रेक्स फर्स्ट के लिए क्या, बस उल्टा कंडीशन होगा. सो लेफ्ट स्ट्रिंग ब्रेक्स फर्स्ट, I can basically say कि sin of omega t naught by alpha should be lesser than 0. इक्वालिटी नहीं है यहाँ पर. अगर यहाँ पे इक्वालिटी होता तो both strings will reach t naught value at the same instant. We don't want that. We want left string should break first. That means this is the condition. So omega t naught by alpha can be, it can basically belong to pi to 2 pi या फिर 3 pi to 4 pi and so on, correct. So basically in general omega t naught by alpha should be lesser than 2n pi and greater than 2n minus 1 pi for n integer values. ठीक है, n का वैल्यू 1 2 starting from 1 integer values. So I have alpha should be, यहाँ पे लिखता हूँ, so alpha should be lesser than omega t naught by 2n minus 1 pi and greater than omega t naught by 2n pi, where omega का value is root k by m. omega क्या है मेरे पास, alright. So for these values of alpha the left string will break first, and for other values of alpha जो दूसरा रीजन है 0 to pi 2 pi to 3 pi उसमें राइट स्ट्रिंग विल ब्रेक फर्स्ट, ऐसे. एंड अगर इक्वल एग्जैक्टली पाई का वैल्यू 2 pi या 3 pi का वैल्यू हुआ तो बोथ स्ट्रिंग्स विल ब्रेक एट द सेम इंस्टेंट. ओके, सो इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन एंड इट इज वेरी मच जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन. मैंने जब ये क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था तो किसी ने लिखा था कि दिस क्वेश्चन मे बी टू डिफिकल्ट फॉर जेईई एडवांस्ड. नो, this is exactly JEE advanced level, because once you see the solution you see इसमें कुछ अलग चीज नहीं है, ये सब SHM ही किया है मैंने, और फिर तो यहाँ पे बस बेसिक मैथमेटिक्स है, जस्ट इक्वेट किया. बट दिस इज द एग्जैक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन JEE advanced. व्हाट डू आई मीन बाय दैट, ये क्वेश्चन जब पहली बार स्टूडेंट देखता है उसको लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स डिफरेंट, एंड दैट इज वेयर द स्टूडेंट गेट्स स्टक. जो मेंटली जब स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन देखता है which is very different to anything he or she has solved before, then they automatically get a mental block. That is exactly what I'm doing in the prediction series. I'm forcing you to open your mind to different approaches, to different sort of language of questions, to different setups that can come, but very much within the JEE Advanced syllabus. Alright, and JEE Advanced में recent years में इसी तरीके के questions आ रहे हैं जहाँ पे the language, the setup all looks very different, but it's not difficult. तो बेसिक से प्रॉपरली मेथोडिकली करोगे तो हो जाएगा. Alright, so that is the whole point of my prediction series, the whole motivation behind the prediction series and even the rare series. And ये जो concept है, ये alpha t minus kx equal to ma, ये वाला जो हमने किया है, maybe you have not seen this before, some of you may not have seen this kind of an expression before,
जहाँ पे एक टाइम के प्रोपोर्शनल फोर्स आता है, बट दिस इज वेरी मच अ क्वेश्चन दैट इज एक्चुअली देयर इन इरोडोव, नॉट दिस, बट ये जो इक्वेशन है उसके वेरी सिमिलर क्वेश्चन है इरोडोव का. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट इरोडोव के क्वेश्चन में क्या है कि मेरे पास एक एलिवेटर है, एंड इसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ये जो इरोडोव के क्वेश्चन है वो एक एलिवेटर है, एंड इट इज गोइंग अप विद सम एक्सेलरेशन विच इज एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा टी, where alpha is some constant, एंड मेरे पास एक स्प्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड है. तो उसमें कुछ तो पूछा गया था कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा कुछ पूछा गया था. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट द पॉइंट इज नाउ दैट यू शुड सी दैट द मैथमेटिक्स इज द सेम, बिकॉज इस पे क्या फोर्स लगेगा, अल्फा टी लगेगा, एक के एक्स लगेगा. वही चीज यहाँ पे लग रहा है, अल्फा टी एंड के एक्स. करेक्ट. एक अल्फा टी फोर्स, एम अल्फा टी फोर्स नीचे लगेगा, सूडो फोर्स एलिवेटर के फ्रेम में, और ऊपर एक के एक्स फोर्स लगेगा. करेक्ट. एंड देन यू हैव टू प्रोसीड एग्जैक्टली द सेम वे. मैथमेटिक्स इज द सेम. और इसके बाद वंस यू गेट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन ये वाला पार्ट तो बहुत ही ईजी है. उसके बाद द क्वेश्चन इज अ लिटिल डिफरेंट. यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा क्या पूछा गया है. सो माय पॉइंट इज दैट दिस क्वेश्चन इज not beyond JEE Advanced. It is very much in JEE Advanced syllabus. It is very much likely कि इसी तरीके का क्वेश्चन JEE Advanced, in fact इसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं JEE Advanced में, which look very different to what you've done, but they are not difficult. Alright? So जैसे जैसे तुम ये हर फ्राइडे एक एपिसोड देखोगे, your mind will automatically start to think of such approaches, and your mind will automatically start to get normalized. कि ये these problems will get, like you'll start to get comfortable with these problems. All right, these are not easy, but you'll still be comfortable. कि तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम मेंटल ब्लॉक नहीं आएगा. All right, so I will see you next Friday, and I think I'm very happy to say कि कम्युनिटी पोस्ट पर कई लोगों को करेक्ट आंसर भी आया इस क्वेश्चन का. So I'm very happy to see that. All right, किसी को मैंने ये भी बोला कि you're on the right track, कि यहाँ पे ये इक्वेशन देख के they got stuck कि ये सही कर रहे हैं क्या. So I said you're on the right track, and I think they finally got the correct answer. Alright, so that is the whole thing. You have to get past that mental block. बस हर फ्राइडे आते रहो, हर फ्राइडे एक प्रेडिक्शन या रेयर एपिसोड देखते रहो, and we'll keep partying every Friday right here, and I will see you next time, and I will see you at the top.